सो डियर फ्रेंड्स, आपकी बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि नेट न्यूट्रलिटी पे कोई वीडियो बनाइए, क्योंकि इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्राई ने भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी है। तो हमारा आज का वीडियो जो है नेट न्यूट्रलिटी पर है। नेट न्यूट्रलिटी जिसका बेसिक मतलब ये है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो यूजर्स हैं, उन सबको वो इक्वली ट्रीट करे। तो इसी पे आज का हमारा वीडियो है। तो इंटरनेट जो प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे शुड फॉलो द नेट न्यूट्रलिटी एज पर द ट्राई गाइडलाइंस। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको बराबरी का अधिकार है, किसी से कोई बैर नहीं होना चाहिए। मुझको एक कबीर का दोहा भी याद आ रहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो इसी प्रकार से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, ना उनकी किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, सबको एक जैसा उनको ट्रैफिक देना चाहिए। इसी थीम पे बेस्ड है आज का हमारा टॉपिक, और जिसका नाम है नेट न्यूट्रलिटी। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मालवा। Hello everyone. So today's topic is a very interesting topic. It is related with the human rights. It is related with the fundamental rights enshrined in Indian Constitution. The topic is net neutrality and the TRAI's recommendation. So the regulator in the field of telecom, that is TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India, which is a statutory body, and this is the principal regulator in the field of telecom, has given some historical judgment regarding net neutrality, and try adjudicated that the net neutrality should be followed in India. तो ट्राई जो कि टेलीकॉम का क्षेत्र का एक सबसे बड़ा नियामकीय संगठन है, उसका कहना है कि भारत में नेट न्यूट्रलिटी का पालन होना चाहिए। और ट्राई जो भी whatever telecom disputes are there, whatever telecom guidelines are there in India, they are all issued by the TRAI, and the decisions of the TRAI can be only challenged at TDSAT, that is Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal. So TRAI is a very important organization, and it has now favored the net neutrality. And net neutrality requires all internet traffic to be treated equally. और जो बेसिकली नेट न्यूट्रलिटी में ट्राई का मानना है कि जितना इंटरनेट ट्रैफिक है उसको बराबर सबको माना जाए, और सारे कस्टमर्स जो हैं उनको बराबर माना जाए। बट येस, इन केस ऑफ सर्टन एसेंशियल थिंग्स like the medical, if there is some medical case or some case related with the the sovereignty of the country or defense of the country, then there can be some exemptions. So let us start the net neutrality. What is net neutrality? The principle of net neutrality says that all internet traffic should be treated equally. इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी ट्रैफिक है उसको सबको समानता का दर्जा दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। एंड एज ए रिजल्ट देयर शुड बी नो ब्लॉकिंग। दैट मीन्स हमारा वट एवर इज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ही कैनॉट ब्लॉक यू फ्रॉम एक्सेसिंग एनी internet content. So there should be no blocking, there should be no throttling. That means your internet service provider cannot make certain traffic slow, तो throttling भी नहीं हो सकता। And third, no paid prioritization. Your internet service provider cannot make any lanes fast lane. So this is a historic decision. So in net neutrality, all the users should be given equal treatment, and there should be equal access, and the speed of the internet should be equal for all the users. यानी नेट न्यूट्रलिटी का नियम कहता है कि सबसे यूज़र से बराबरी का दर्जा दिया जाए, और इक्वल सबको एक्सेस हो, और सबको बराबरी की स्पीड मिले। And since in India,
there is a right of equality in Indian Constitution, and in United Nations there is a rule that it is a basic fundamental human right that all humans are equal. So when all human rights are equal and when they are using the internet, they should have equal rights. तो ये निर्णय इस बात से भी बहुत प्रभावित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो इंटरनेट के यूज़ को एक मानव अधिकार का विषय मानता है, और सारे चूँकि मानव बराबर हैं तो उनके राइट भी इक्वल होना चाहिए, और भारतीय संविधान में भी सबको बराबरी का दर्जा है. So the telecom companies now cannot create certain lines as fast lines. And TRAI also recommended that for enforcing a net neutrality there should be a watchdog. और ट्राई का ये भी कहना है कि नेट न्यूट्रलिटी को भारत में लागू करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए. And for that, DO2, the Department of Telecommunication, will set up a body which consists of industries, the representative from industries, the representative from the civil society, to monitor and enforce. तो इसके लिए जो DOT है वो एक ऐसा संगठन बनाएगा जिसमें ना केवल उद्योग जगत के लोग, जबकि उसमें जो है सिविल सोसाइटी के भी लोग हों जो इन्फोर्स करेगा नेट न्यूट्रलिटी को. एंड whosoever company violates the net neutrality will be given a fine of ₹50 lakhs. तो जो भी कंपनी इसे नहीं मानेगा 50 लाख रुपए का जुर्माना भी उसे देना पड़ सकता है. However, there are certain services which are treated as an exception to the net neutrality. कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिससे अपवाद फलस्वरूप नेट न्यूट्रलिटी की परिधि से बाहर रखा गया है. Like these services are like the specific security related services, are the stipulated emergency services, like देश की एकता अखंडता से संबंधित कुछ सेवाएं हैं या कुछ ऐसी इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो इसकी परिधि से बाहर हैं. And TRAI has also kept the content delivery services or the networks, that is CDN. So in the content delivery network consists of services which are provided to the end users like e-commerce, like social media, live streaming of the media. तो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो इसकी परिधि से बाहर हैं, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड या इमरजेंसी से रिलेटेड या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से रिलेटेड. एंड सिमिलरली सम इंटरनेशनल ट्रीटीज, और इफ़ देर आर सर्टन कोर्ट ऑर्डर्स और इफ देर आर सम गवर्नमेंट ऑर्डर्स, सो दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड बाय द गाइडलाइंस ऑफ द ट्राई. तो अभी हमने देखा कि ट्राई क्या है, फिर हमने देखा नेट न्यूट्रलिटी पे ट्राई की क्या रिकमेंडेशंस हैं. देन व्हाट आर द आर्गुमेंट्स सपोर्टिंग द नेट न्यूट्रलिटी. So there are number of arguments in favor of net neutrality, because net neutrality ensures the human right. It ensures not only human right, it ensures the constitutional right of freedom of speech and expression. तो ये बेसिकली मानव अधिकार की रक्षा करती है, और भारतीय संविधान में इस मानव अधिकार को संवैधानिक अधिकार का भी दर्जा है, तो एक तरीके से उसकी भी रक्षा करती है. And through it, even the users which are not well off, they can also avail the same kind of speed. So it will result into more creativity coming into action in India in the service sector. So it promotes the weaker sections, the startup companies. So this is how it's really good. Now what are the arguments against the net neutrality? So there are certain arguments which are against the net neutrality, because if we go with the net neutrality, the profit margins of the telecom companies will be reduced, so as the future investment of the telecom companies may be retarded. तो ऐसा करने से जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके लाभ में कमी आएगी, आगे जाके उनकी ग्रोथ में कमी आ सकती है. And it adversely impact the Digital India initiative of the government. तो इससे जो भारत सरकार के जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी हो सकता है ज़्यादा एक्सपांशन पे ध्यान ना दे.
And in developed nations like USA, China and Australia, even today there is no net neutrality. और कई ऐसे विकसित देश हैं या विकास की कगार पे हैं जहाँ पे आज भी नेट न्यूट्रलिटी नहीं है. So next thing is there a law in India which enforces the net neutrality? So the answer is there is currently only the guidelines and the regulations of TRAI on net neutrality. भारत में वर्तमान में नेट न्यूट्रलिटी के लिए ना तो कोई संविधान में प्रावधान है, ना किसी विधि विधान में प्रावधान है. इससे संबंधित जो ट्राई की ही गाइडलाइंस हैं, और when there are guidelines of TRAI, so they will be enforceable. And now let's come to the way forward. So through this decision on net neutrality, on one hand the TRAI has tried to protect the weaker customer, the weaker sections, and on the other hand it has cut the profit margins of the telecom giants, and it really shows the India's commitment, the TRAI's commitment of saving the human rights. So thank you very much. सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिएगा. ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और इसको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए. ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है. ये आपकी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएगा, नॉलेज को आगे बढ़ाएगा. और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों. और हमारे वेबसाइट यूनिक आईएएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, रिपोर्ट एनालिसिस किया हुआ है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है. और आपको सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूनिक आईएएस में नए बैचेस भी अवेलेबल हैं आईएएस और एमपीपीएससी के लिए. और फर्स्ट 10 एडमिशन लेने पे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स भी हैं उसमें, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं. बड़ा ही हमारा कोऑपरेटिव स्टाफ है, आप कभी भी आके डेमो की फैसिलिटी भी ले सकते हैं. और दोस्तों, और जैसा कि आपको पता होता है कि वीडियो के लास्ट में जरूर हम कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं. और ये क्वेश्चन है कि DUMB डम्ब पाइप इज रिलेटेड विद विच टेक्नोलॉजी. यानी जो डम्ब पाइप है उसका संबंध किससे है? नंबर 1 ब्लॉकचेन से, नंबर 2 नेट न्यूट्रलिटी से, नंबर 3 नैनो टेक्नोलॉजी से. तो आपको बताना है कि जो डम्ब पाइप है उसका रिलेशन किससे है.